Hello guys, welcome back to Dr. Dentico YouTube channel. Here I will post all types of dental study videos which will help you in all types of dental examination. So today our topic is urine formation, mainly the glomerular formation, glomerular filtration. Okay, before starting with the glomerular filtration, you must have to know how the urine will form. Okay, this one is the nephron structure which I already covered in first and second part. So if you didn't watch that two videos, please go and watch those first two parts. I will give in the link in the description box and also in pop and I button. Okay. This one is a nephron. मैंने पूरा ऐसे गोल गोल घुमा के नहीं किया है, मैंने सिंपल ड्राइंग की है. ठीक है. This one is the afferent arteriole and this one is the efferent arteriole. This one is the glomerulus and after that this one is the Bowman's capsule. The combination of the glomerulus and the Bowman's capsule is known as Malpighian capsule, also which is also known as the renal corpuscle. Okay. After that the PCT, it means proximal convoluted tubule, then loop of Henle, and after that the TCT, it means distal convoluted tubule. After that it will go with the collecting duct. This collecting duct is not a part of nephron. Okay, remember this thing, because this collecting duct just do a collection of the urine whatever is secreted from each nephron. Okay, this efferent arteriole will go with the peritubular capillaries. Okay, then this peritubular capillaries will form a renal vein. Okay, understood. Now in this we have to know, we should learn the what is the formation of urine, what is the process of urine formation. In this glomerulus, this blood is coming, right? That blood contains some amount of waste products, so we have to remove those waste products from the blood. Okay, don't remove all the products, just waste products. Whatever products are important, we don't have to remove that. So here some products will remove, like urea, water and the glucose. ओके, अब ये जो हुआ, यूरिया हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया. पर अभी आप सोचो, अगर वाटर इतना सारा हो गया, इतना सारा वाटर फिल्टर हो गया, तो सोचो क्या होगा. डिहाइड्रेशन होगा. ठीक है, बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी. ये वाला वाटर इतना सब होना चाहिए नहीं. हमें क्या करना होगा, ये सारा वाटर रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा. वैसे ही मान लो ग्लूकोज. अब हम ग्लूकोज का काम क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, हम मेहनत क्यों करते हैं, ताकि बड़े होंगे डॉक्टर बनेंगे, कुछ और बनेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे क्योंकि हम डेंटिस्ट तो फर्स्ट ईयर में तो आ गए हैं. अब बड़े होंगे डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा, पैसे कमाएंगे. अब पैसे कमा के क्या करेंगे, पेट भरेंगे. अब जिस ग्लूकोज को पाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, उस ग्लूकोज को हम ऐसे ही जाने दें, नहीं ना. वी हैव टू रीअब्जॉर्ब द ग्लूकोज ऑल्सो. दिस फर्स्ट वॉट एवर फिल्ट्रेशन अकर, this okay, the urine formation will occur in 3 phases. Okay, remember this. फर्स्ट फेज इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ओके, ये जो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स आई, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. समझ में आया? ठीक है. अभी यहाँ से यहाँ पे आ गई. ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आई वो सब यहाँ पे आ गई. अभी यहाँ पे इनको आके पता चला कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो काम की हैं जो हमें हम जाने नहीं दे सकते. हमें क्या करना होगा, उसको रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, राइट. अब ये जो रीएब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, कहाँ पे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में हमें उसको रीएब्जॉर्ब करना है. ओके, यहाँ पे मैं रीएब्जॉर्ब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब कभी भी एब्जॉर्प्शन फर्स्ट टाइम होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन. इट मीन्स जब भी हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन. ओके, बट आफ्टर अकरिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन we will do again absorption. This again absorption is known as reabsorption. Okay, अब यहाँ से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. ठीक है, अभी यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन तो हो गया, फिर उसको याद आया
अभी यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, ब्लड में से निकल गया, फिल्टर हो गया, जो भी अमाउंट था वो रीएब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ से ये जो ब्लड जा रहा था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, वहाँ पे जाते जाते उसको याद आया ब्लड को कि अरे नहीं बाबा नहीं, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये कहाँ मैं साथ में लेके आया। सो उसे वापस डालना पड़ेगा, ठीक है। सो इट विल सिक्रीशन विल अकर अगेन, ठीक है। तो ये सिक्रीशन हो रहा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगी, ट्यूबुलर सिक्रीशन। फर्स्ट फेज इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, सब प्रोडक्ट्स वॉट एवर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देयर, इट विल फिल्टर आउट, ओके, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमेन्स कैप्सूल। फिर क्या होगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ गलती से आ गई है उसको रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। और जो भी ब्लड जब वहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में पहुँचेगा और उसको याद आएगा कि नहीं यार ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये तो मैं गलती से लेके आया हूँ, तो उसको वापस से बोमेन्स कैप्सूल में लाना पड़ेगा। सो दिस वन इज नोन एज सिक्रीशन, ओके, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ पे जो बनता है उसे आप यूरिन नहीं कह सकते, सही है ना, उसे आप यूरिन नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, ओके। सो look at here. The three phase I already told you. One is the glomerular filtration, then tubular reabsorption, tubular secretion. Okay? Any doubt? If you have any doubt, then please ask in comment section. समझ में आ गया ये पूरा? अभी हम जाएंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की तरफ। वॉट एवर दिस फर्स्ट फेज इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलस है क्या। वॉट इज द ग्लोमेरुलस? सो हियर आई ड्रो अ ग्लोमेरुलस. दिस वन इज एफरेंट आर्टेरियोल, दिस वन इज इफरेंट आर्टेरियोल, राइट। अब ये जो एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल है, ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे जूम आउट करके ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे इसमें सेल्स दिख रहे हैं आपको, द सेल्स आर द स्क्वैमस सेल्स, ऐसे सेल्स दिख रहे हैं, और उसमें अंदर देखो होल्स हैं ऐसे थोड़े थोड़े, दिस होल्स आर नोन एज द फेनेस्ट्रा। अब याद करो, अब जब भी आप सर्कुलेशन सिस्टम पढ़े होगे, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, पर अभी आपको अगर पता है तो प्लीज़ याद करो, अगर नहीं पता है तो सुन लो। जो भी कैपिलरीज होती हैं, वॉट एवर सेल्स आर देयर इज नोन एज द एंडोथेलियम, ओके। सो यहाँ पे इस कैपिलरी को मैं एंडोथेलियम बोला सकती हूँ, ठीक है। अभी ये क्या है, फेनेस्ट्रा, इसमें क्या है, होल्स है, दिस होल्स आर नोन एज फेनेस्ट्रा। अब हर कैपिलरी थोड़ी बहुत 19-20 लीकी होती है, ठीक है, पर ये वाली कैपिलरी कुछ ज़्यादा ही लीकी है, क्योंकि इसको तो फिल्टर आउट करना है, सब प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स इसको फिल्टर करनी है। सो इसको तो होल्स चाहिए ही चाहिए होंगे, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही लीकी हो गई, ठीक है। अभी ये हुआ फर्स्ट सेल्यूलर लेयर, दिस आर द स्क्वैमस सेल, ओके, रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट वन नॉन सेल्यूलर लेयर विल फॉर्म हियर, this non-cellular layer, all capillaries have non-cellular layer. This non-cellular layer is known as a basement membrane, okay. First one cellular layer, then below this one non-cellular layer which is known as basement membrane. अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आ गए हम बोमेन्स कैप्सूल में। अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल है वो 2 टाइप के स्क्वैमस सेल से बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर बना हुआ होता है विसरल लेयर का, किसका, सॉरी, कौन सा लेयर, कौन सा बना हुआ होता है, ये विसरल लेयर, राइट। अब ये जो विसरल लेयर है वो उसके में जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम पोडोसाइट, कुछ ऐसे दिखते हैं ये पोडोसाइट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। ये मतलब इसको पकड़ के रखते हैं पूरे ऊपर के ये जो सेल्यूलर लेयर है उसको ऐसे पकड़ के रखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 1D डायमेंशन में देखें तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, पर 3D में देखें तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं पेडिसेल, ओके। क्या बोलते हैं, पेडिसेल।
अब होगा क्या कि यहाँ पे जब भी वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे फिल्टर आउट होंगी तो पहले तो वो लीकी है, मतलब फेनिस्ट्रा है, तो वहाँ से मतलब बाहर निकलेगा, ठीक है। अभी आफ्टर दैट इट विल क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट इट विल कम आउट फ्रॉम द पोडोसाइट सेल, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रही है, ऐसी ये जो स्पेस है, रुको, ये वाली स्पेस दिख रही है, इस स्पेस में से क्या होगा, वो बाहर निकलेगा, वॉट एवर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देयर इट विल come out. Okay, so there are the three types of filtration membrane. You know this. One is a fenestrated endothelium, right? You know now. Then second one is a basement membrane. You already know this. Then third one is a podocyte with slit pores. Okay, so what is the slit pores? यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, देखो देखो यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी ये वाला जो है ये है पोडोसाइट, राइट। अभी इसके बीच में आपको ये वाली जो स्पेस दिख रही है दो पोडोसाइट के बीच में, दिस स्पेस इज नोन एज स्लिट पोर्स, कुछ ऐसा है पोडोसाइट, राइट। अभी इसके बीच में ये वाली जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज स्लिट पोर्स। ओके, नाउ we will continue with the glomerular filtration rate. I will cover this topic in the next video. Okay, so if you really like this video, then please like it, share with your friends, and subscribe this channel and hit the bell icon so you will not miss any new notification from this channel. And if you have any doubt, then please ask me in comment section. I will definitely give you a reply. Okay, thank you.